Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Konaksya High Flyers. Friends, in these episodes, as all of you are aware, we talk to you about emerging companies and discuss, their business plans, their growth journey, their future expansion plans with the promoters and the top managements of such companies. And this helps us to understand these companies in a much better way. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is QEC Exports Limited, and we have the pleasure of having the promoter, Mr. Nilesh Kumar Sharma. Nilesh ji, thank you very much for sparing your valuable time. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए और मुझे यकीन है ये छोटे से इंटरव्यू में हमको बहुत अच्छी जानकारी आपकी कंपनी के बारे में हमको मिलेगी. Thank you so much, Avinash ji. Thank you for inviting me on your show. It's my तो pleasure. नीलेश या तो नीलेश जी पहला सवाल जो बहुत बेसिक है हमको आपकी कंपनी के बारे में बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाइए. वैसे तो मैं जानता हूँ कि कंपनी काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी एक्सपोर्ट करती है हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस किस प्रकार से पोजीशनड है और सर ये जर्नी आपने कैसे शुरू की क्या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके फादर के टाइम से ये कंपनी आपने संभाली है इसके बारे में कुछ बताइए. जी, तो हमने ये कंपनी स्टार्ट की 2005 में और टू ट्रेड इन ferroalloys and other raw material of steel. So ferroalloys is basically ancillary to steel industry. So and हमने 2008 में पहला एक्सपोर्ट स्टार्ट किया to Bangladesh, and then we continued our journey. उसके बाद में एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में उनको ये डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट लाइक इफ इट इज माइल्ड स्टील or it is special steel or it is stainless steel, depending on their product. They need our ferroalloys like ferrochrome, silicomanganese or ferromanganese or ferrosilicon. So it goes into different steel production in different parameters. नहीं बिल्कुल समझ गया मैं. नीलेश जी मुझे बताइए ये जो फेरो एलॉयज की आप बात कर रहे हो मैं जानता हूँ कि इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द स्टील इंडस्ट्री. मेरे को बताइए सर ये सारा सोर्सिंग आप कहाँ से करते हो यानी बेसिकली यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ से माल लेके आप एक्सपोर्ट करते हो लेकिन बेसिकली सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स कहाँ से आप करते हो और आपका ये सोर्सिंग का जो मार्केटिंग काइंड ऑफ रीच है या ज्योग्राफिकल जो एडवांटेज है इसके बारे में बताइए ये आपने कैसे डेवलप किया और कितना वाइडली आपका ये ज्योग्राफिकल और मार्केटिंग रीच है जिससे कि आपको सही रॉ मटेरियल सही प्राइस पे मिलता है सही क्वांटिटी में मिलता है तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए. So Avinash ji, actually India में ferroalloy manufacturing is basically concentrated in state of West Bengal, Chhattisgarh, and Vizag region in Andhra Pradesh, and also some plants in Jharkhand. So basically, over a long period we have developed a very good relationship with all the manufacturers of ferroalloys. Because since beginning we started to import the raw material for the ferroalloy industry, that is manganese ore, and we used to supply manganese ore for their production, and we used to buy back the finished goods, and in turn we export it to our customer globally. So basically it's two-way relationship which gives us advantage of getting the right material at the right price and the right quality and right time. Okay. So which we cater to our customers globally. ठीक है नीलेश जी अंडरस्टूड. मेरे को बताइए नीलेश जी अभी हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो विच आर द मेजर मार्केट्स वेयर QVC एक्सपोर्ट्स लार्जली एक्सपोर्ट्स दिस फेरो एलॉयज एंड सेकंडली सर अभी अगले 3-5 साल की अगर हम बात करें इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट 3 to 5 years स्टील इज अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया. द
the average consumption of steel is also less, so काफी मात्रा में ferroalloys बनते हैं. बट ओवरऑल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो सर कितना बड़ा मार्केट है और हम इस मार्केट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे? तो ये दोनों क्वेश्चंस के सर हमको इनपुट्स प्लीज दे दीजिए. So it's a very good question because very nicely asked by you. So I'll answer it in very brief so that your viewers can understand the whole thing. Basically, for any infrastructure development in any country, we need steel. And the India and is a developing country right now, and there are many countries who are developing or underdeveloped in terms of infrastructure and all this. So any infrastructure building whether it is roads or bridges or railways or whatever, they need steel. So we are still amongst the lowest per capita consumption steel country in the world. One of the lowest. India का जो per capita steel consumption है still among the lowest in the world. So US or Europe is very high. So there are a lot of opportunities in steel sector. So whenever we have to manufacture steel, we need ferroalloys to manufacture steel. So there are huge growth in the steel industry. बट और इंडिया में भी हम अपना थोड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो अभी टोटल एक्सपोर्ट से आ रहा है more than 80%. But India also have lot of requirement of ferroalloys, and we have been able to generate our 20% around revenue, 18 to 20% from the domestic market, and we are trying to increase that fold also. ओके. अच्छा नीलेश जी, नाउ टेल मी वन थिंग कि इसमें इस मार्केट में जब आप एक्सपोर्ट करते हो, व्हेन यू एक्सपोर्ट द फेरोअलॉयज, सर हाउ इज द प्राइसिंग डिसाइडेड? इज इट द डायनामिक प्राइसिंग की बेस्ड ऑन द करंट रॉ मटेरियल व्हिच यू गेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, उसके प्राइस के हिसाब से आप मार्जिन लगा के फिर आप एक्सपोर्ट करते हो, या आपके कोई फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई बड़े कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके चलते हैं? तो सर ये प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा चलता है? बिकॉज मेटल तो ग्लोबल कमोडिटी है, आई मीन ऑब्वियसली प्राइसेस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो प्राइसिंग को लेके सर हाउ डू यू डिसाइड दैट फॉर वन कंसाइनमेंट ऑफ लेट्स से फेरोअलॉयज और मैंगनीज और जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो, उसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? सो प्राइसिंग का ऐसा होता है सर कि हमारे कुछ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन you can say publishers like Metal Bulletin, or there are lot of publishers who publish the global prices frequently. So certain contracts are based on, they are long term contracts based on those prices, and also there are spot contracts which we do the export contract quantities on the spot basis, and then we export it. So the prices is like any other industry. This is also a price sensitive industry, and basically it is also based on the global demand and supply. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताइए सर, इसमें नॉर्मली ये धंधे में ऑर्डर बुक सिस्टम चलता है? लाइक डू यू हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ लेट्स से 2 months 3 months एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट? जो रेगुलर कस्टमर्स है वो आपके पास रेगुलरली आते हैं, कोई नया कस्टमर आता है, तो डज इट मीन दैट कम से कम 2-3 महीने का या 4-5 महीने का ऑर्डर बुक आप लेके काम करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली योर वॉल्यूम्स आर डिसाइडेड अक्रॉस द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कुछ होता है? हाँ, तो ऑर्डर बुक का भी हमारी, जो आप देखेंगे कि हमने वहाँ डिस्क्लोज भी किया है कि हमारी अराउंड 49 पॉइंट समथिंग करोड़ की अभी ऑर्डर बुक है. तो अभी, और उसके बाद भी हमारे ऑर्डर्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे हमारी शिपमेंट्स भी चलते रहते हैं. तो इट्स लाइक दैट ओनली. ओके. अच्छा नीलेश जी, अभी एक बात बताइए, देखिए इस धंधे में हाउ डू यू प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू द क्लाइंट्स? लाइक वी आर इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस, सो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर मैं आपको 2-3 चीजें धंधे के बारे में पूछूं जो नॉन फाइनेंशियल है, सर हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर? डू दे लाइक आवर एग्जीक्यूशन? डू दे लाइक आवर
रीच कि भाई कहीं से भी आप प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल करके देते हो, टाइम पे देते हो। तो ऐसी 2-3 चीजें व्हिच यू कैन से क्वालिटेटिव पॉइंट्स व्हिच कैन से दैट we are doing our job in our industry much better than other companies. So if you could share some inputs on this. Yeah, so in our business, the number one requirement is of timely delivery and logistics. So we have a good team, logistics teams here, which ensures the timely delivery to our customers, timely shipment to our customers. Number one. The second requirement of the customers is quality. So we procure the material which are time tested, from the suppliers which are time tested, and which are reliable suppliers in the country. So which we have been experiencing through the years. So the number two is quality. Number three is the connect, like the trust which we have built up with our customers, and we visit our customers, we attend conferences, and we give the positive feedback to our customers about the prompt shipments and all the requirements of the customer we fulfill. We are basically we are uh, more professional, and that is what our customers are liking. ठीक है। नीलेश जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स पार्ट। मैं देख रहा था कि सर FY24 के लिए आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। इनफैक्ट रेवेन्यू हैज गॉन अप टू समथिंग लाइक 445 crores. इट वाज अर्लियर, इट वाज अराउंड 230 crores, सॉरी 207 crores। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने तो बहुत अच्छा जंप मारा है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल करीबन 2.3 crores था ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी सर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड फॉर सच अ big dramatic improvement in both the top line and profitability? क्या वॉल्यूम ज्यादा थे, कि प्राइसेस आपको अच्छे मिले, क्या कारण था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस साल देखने को मिला? सो अविनाश जी, आई विल टेल यू कि हमने थोड़ा अपना मार्केटिंग टीम को स्ट्रेंथन किया। पहले हम जोन वाइज अभी अपने काम करना चालू किया। तो हमने पूरे जो ग्लोब को 3-4 जोन में बांटा, और हमने अपनी मार्केटिंग टीम को थोड़ा स्ट्रेंथन किया। और हमने सेकेंडली हमने अपना कस्टमर रीच, जो एंड यूजर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के, उनको हमने थोड़ा शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में। तो हमको अच्छे रिस्पॉन्स आए और अच्छे ऑर्डर मिले, और कस्टमर्स आर ऑल्सो हैप्पी, और हमको रिपीट ऑर्डर्स भी मिले, जो कि अभी इस साल कंटिन्यू हो रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए नीलेश जी, मैं देख रहा था कि देखिए पिछले 2 साल में ना आपके धंधे में जो बैड डेट्स है, अभी तो ऑफकोर्स FY24 के लिए तो कोई बैड डेट नहीं है, बट पिछले 2 साल में सर बैड डेट्स काफी सिग्निफिकेंटली हाई थे। इनफैक्ट ये बिजनेस में सर बैड डेट्स होना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। फिर भी ये बैड डेट्स आए कैसे? क्योंकि सर आपका बिजनेस तो मेरे ख्याल से सब कुछ LC बैक्ड होगा, बैंक गारंटी बैक्ड होगा, तो फिर भी ये बैड डेट्स हुए कैसे, ये जरा बताइए। So basically, after COVID, we pay advance to our suppliers actually. Okay, so there was no bad debt from the buyer side करेक्ट। in our export receivables. So basically, after COVID, a lot of companies, suppliers were financially stressed. So we paid advance to supply the material to them, and then one or two company they got closed due to financial crunch, and we suffered bad debt on that account. नहीं, बट फिलहाल तो मेरे ख्याल से इस साल दैट इज FY24 में तो कोई भी बैड डेट नहीं है ना। आई थिंक ऑल द नहीं, नहीं. That was a special time when COVID came, and everybody was stressed, financially stressed. So yeah, so that was the reason of. नीलेश जी, आई थिंक समझ गया। नीलेश जी, दूसरी एक बात मैं जानना चाहता था सर, आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो मैं आपका अदर इनकम देख रहा था। अदर इनकम में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आल्सो आर अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर काइंड ऑफ रेवेन्यू इनकम, बट बहुत सारा कंपोनेंट आपका अभी भी अदर इनकम से आता है। तो सर ऐसा क्या क्या है जो अदर इनकम में आता है? बिकॉज 7-8 करोड़ का अदर इनकम, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस ईयर वाज अबाउट 6 करोड़। सो सर ये अदर इनकम आगे चल के विल इट नॉर्मलाइज? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल टर्म्स में आप मार्केट में बात करोगे तो लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मुझे बताइए, ये अदर इनकम का जो ट्रेंड है पिछले 2-3 साल से वही का वही है, यानी अदर इनकम इज स्लाइटली एलिवेटेड,
अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रेवेन्यू में भी डाल दो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव में, जो नॉर्मल अदर इनकम हम मानते हैं, बट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अदर इनकम जो आप दिखाते हो सर, वो कितने टाइम तक सस्टेन होंगे आगे चल के? विल द ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी टेक अ फ्रंट सीट अकॉर्डिंग टू यू? So Avinash ji, I'll tell you that the other income which you see in our balance sheet is actually the operating income, because uh, that's a foreign exchange gain. The forward ओके, contract, when we sell the material to our customers, we ओके, that time we booked our sale at a ओके, certain exchange rate, अच्छा, and when we hedge the currency forward, when we receive the funds, so there is a currency gain, which is ओके, part and parcel of our business. And ओके, ओके, according to AS accounting standard 11, we have to show it as a other income, but it's अच्छा, part of the ओके, operating ओके, profit. ओके, तो बेसिकली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, समझ गए? Yes. ठीक है, ठीक। नीलेश जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी जो इंटरव्यू का है वो आपके पब्लिक इशू को लेके, नाउ कंपनी इज गोइंग पब्लिक। सर, टेल अस वन थिंग, हाउ मच मनी इज द कंपनी प्लानिंग टू रेज एंड व्हाट इज दिस मनी गोइंग टू बी लार्जली यूज्ड फॉर? सर, इसके बारे में बताइए। So we are planning to raise around 24 crore rupees. 24.07 is the exact figure. So, and major part of this will go to our working capital requirements to increase our revenues in future plans, to gain more customers, and we can have more relaxation in terms of working capital requirement. ओके, And a small portion is repayment of debt, which is close to 1 crore. ओके, And the small part is also the general corporate purposes, which is obvious with the IPOs. ओके, ओके। इसका मतलब मेजरली वर्किंग कैपिटल के लिए बेसिकली द फंड्स आर बीइंग रेज्ड, सो दैट विल हेल्प अस गिव अस अ बिगर काइंड ऑफ टॉप लाइन एंड बिगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी. Nilesh, now coming on the working capital side, since you said that you are raising money for working capital, normally Nilesh ji, what is the working capital cycle? हमारे धंधे में सर वर्किंग कैपिटल साइकिल आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कस्टमर्स को देते हो तो कुछ एडवांस आपको मिलता है, या एक बार कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल सप्लाई करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलता है? तो मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है? सर बेसिकली हमारा जितना भी सेल है वो सारा सिक्योर्ड पेमेंट पे ही हम करते हैं. We don't give any credit to any customer ओके, which is unsecured. और यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है हमारा क्लोज टू 35 to 45 डेज रहता है, डिपेंडिंग ऑन द all import, all the activities taken together, import and exports, and also domestic sales. ओके। तो उसका मतलब सर फिर आप इन्वेंटरी कुछ सिस्टम में बिल्ड नहीं करते? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगले 2 महीने के बाद आपको शायद बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, तो नॉर्मली सिंस वी आर अ ट्रेडिंग कंपनी सर, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक इज आल्सो वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर स्टॉक है तो ही आप उसको एक्सपोर्ट कर पाते हो। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सर आप कैसे करते हो? लाइक सपोज किसी का फेरो एलॉयज का बड़ा ऑर्डर है, या मान के चलिए कि 2-3 महीने के बाद आने वाला है, तो इन्वेंटरी प्लानिंग आप कैसे करते हो? सो इन्वेंट्री प्लानिंग ऐसा होता है सर कि हम कुछ इन्वेंट्री तो हमारे पास ऑलरेडी पाइपलाइन में रहती है, और हम लोग फॉरवर्ड बुकिंग भी करते हैं हमारे सप्लायर्स के साथ में, ओके, जो ओके, कि यस. सो डिपेंडिंग ऑन द customers रिक्वायरमेंट, वी थ्रू these years we have that kind of experience that अच्छा, we'll be ओके, requiring to that much of quantity, and that ओके, ओके, yeah, that goes like that. ओके। तो बेसिकली प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसका मतलब इन्वेंटरी पूरी तरह से हमारे गोडाउन में नहीं रहती, आई मीन आपके पास अरेंजमेंट्स है सप्लायर्स के पास, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अरेंजमेंट मार्केट में चलता है, सो दैट इज द वे यू ऑल Well, मिनिमाइज that is to save the logistics costs also, because if we buy the inventory and then we keep it in our godown, it will incur the extra cost of loading, unloading, and trucking, एग्जैक्टली, which we एग्जैक्टली, want to save to be competitive in the export market. ओके, ओके, नहीं ठीक है, समझ गया। अच्छा, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन नीलेश जी, नाउ ऑन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, लाइक आवर बिजनेस इज वेरी ग्लोबली ओरिएंटेड, ग्लोबली कुछ भी होता है प्राइसेस को लेके, डिमांड सप्लाई को लेके, तो उसका इमीडिएट असर अपने को आता है। बट हमारे धंधे में सर सबसे बड़ा रिस्क, इतने सालों से आपने कंपनी मैनेज की है, टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस एंड हाउ हैव यू मैनेज
to mitigate this risk so well and still continue to operate well? Okay. So, Avinashi, there is a risk in every part of life, every business. Okay. But it has not come in one day. It has been, we are doing since last 20 years, 19, 20 years. So it has come with the experience, with the, building of trust with our customers and, with our suppliers. And this is something which can't be explained, because this is something which we have to, this is very dynamic. This is part and parcel of the business, and we used to mitigate it through our experience and uh, through all these years. नहीं, बट इसका मतलब मेजर रिस्क कहाँ से आता है, लाइक वेदर इट इज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्राइस वोलेटिलिटी? मैं ये पूछना चाहता था कि मेटल स्पेस तो हम सभी जानते हैं कि बहुत वोलेटाइल है, यूएस में कुछ हो गया, चाइना में कुछ हो गया तो इमीडिएटली यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन और लोकल प्राइसेस में असर आता है, तो वैसे ही टाइप की वोलेटिलिटी हमारे धंधे में देखने को मिलती है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। हाँ, वोलेटिलिटी तो देखिए रहती है, तो उसको हम मिटिगेट करते हैं। आपको जैसे बताया कि अगर कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गई, तो ऑफ कोर्स हमारे जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं थोड़े, तो हमको उसमें क्या है कि कस्टमर को तो हम बोल नहीं सकते कि भाई हमारा शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया, हमको तो उसी प्राइस पर डिलीवरी करना है। तो ये थोड़ी बहुत होती है, लेकिन दीज आर मैनेजेबल, लाइक थ्रू द years we have been able to sustain through the strategies which we have gained through experience. बिल्कुल सर, अच्छा लगा आपसे बात करने को। एंड सर प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस सर, आपको, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Avinash ji.